Hello friends, welcome to our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Indrajit Rajput, Assistant Professor in Department of Computer Engineering. Today we will discuss a software process model. In that we discuss a spiral model. So first we introduce what are the need of spiral model or when to apply a spiral model. So when we are not able to identify all the requirement at the beginning of software development, then we need such kind of software process model. These kind of models is called evolutionary model. That means we will make a smaller project or a prototype for initial requirement, and that prototype give to the customer for using. When customer is used, they identify some problem or requirement, then we edit these requirement in next development. So spiral model is also one of the popular evolutionary process model used by industry in present time. It is a popular model used for large size project. Why we are using large size project for that model? Because software developer or customer cannot be able to identify all the requirement at the starting for a larger project as compared to smaller project. So this kind of model to be used. The model focus on minimizing the risk through the use of prototype. Prototype means we are develop a small software with less requirement and give to the user for using. And one can view the spiral model as a waterfall model with each stage preceded by the risk analysis stage. That means it is work similar to waterfall model in each cycle. That means we must follow the sequence of a step in particular cycle, then one cycle, then two cycle, and three cycle till the end of development. So the spiral model is divided into a number of framework activities. These framework activities are denoted by task region. Usually there are 6 task region as shown in figure. One is customer communication, second planning, third risk analyzing, fourth engineering, fifth communication and construction and release, and sixth customer evaluation and feedback. In that we have seen a spiral. There is some rectangle where to start the process, and this first we communicate with customer and then plan our project how to develop. Before engineering we will discuss risk analysis. What are the possibilities of a particular problem? What are the chances of failure of such problems? So before going to the next phase, we first analyze the risk of a particular problems. So the radial coordinate in the diagram represent the total cost incurred till date. Each loop of the spiral represent one phase of the development, and each phase must follow the waterfall approach. That means first we communicate, then plan, then risk analysis, then engineering, then construction, and then customer feedback. So each loop of the spiral represents one phase of the development. The task region can be described as follows. First one is customer communication. In this region, it is suggested to stabilize customer communication. Second phase, planning. All planning activities are carried out in order to define resource, timeline, and other project related activities. That is requirement gathering to be performed during this phase in case of spiral model. Next, when we gather the requirement, then we need to analyze or risk analysis. The task required to calculate technical and management risk are carried out.
जो हमने रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज में आइडेंटिफाई, उसका हम रिस्क एनालिसिस करते हैं। क्या जो रिक्वायरमेंट हमने आइडेंटिफाई की है, क्या इट इज़ फिजिबल आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल और बजट और इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरेशन। इन दिस फेज ए प्रोसेस इज अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यदि हमें बजट की प्रॉब्लम है या हमें टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट इंजीनियरिंग। इन दिस टास्क रीजन task required to build one or more representation of applications are carried out। हमें जो भी काम दिया है हम उसको अल्टरनेटिव भी देखते हैं कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं या दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है सिमिलर काम करने के लिए। दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। इन दिस फेज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड अलॉन्ग विथ टेस्टिंग एट एंड ऑफ द फेज। Hence, in this phase, the development testing is done. Then, construction release. All the necessary tasks required to construct, test, install the applications are conducted. Some tasks that are required to provide user support are also carried out in this task region. हम कंस्ट्रक्शन फेज में क्या करते हैं कि जितने भी हमारे टास्क हैं, एक एक टास्क को बनाएंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे मशीन पे। यदि वो सक्सेसफुल है, देन हम गोज टू द नेक्स्ट फेज। सिमिलर एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म इन another phase. Then customer evaluation. Customer feedback is obtained and based on customer evaluation required tasks are performed and implemented at installation stage. हमने फर्स्ट फेज में मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, फिर उस सॉफ्टवेयर को हम कस्टमर को यूज़ करने के लिए देते हैं। देन कस्टमर कुछ फीडबैक देता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और कुछ सजेशन देता है। उस सजेशन को हम नेक्स्ट फेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। देन इन ईच रीजन नंबर ऑफ वर्क टास्क आर कैरिड आउट डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट। कितने नंबर ऑफ टास्क होंगे, क्या क्या टास्क होंगे, किस पर डिपेंड करते हैं, प्रोजेक्ट के टाइप पे, प्रोजेक्ट कैसा है आपका। इन स्पायरल मॉडल द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स मूव अराउंड द स्पायरल इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिगिनिंग एट द कोर। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि फर्स्ट फेज में, फिर सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, टिल द एंड ऑफ फाइनल रिक्वायरमेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड। देन नेक्स्ट गोज टू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। फर्स्ट वन, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, हेंस अवॉइडेंस ऑफ रिस्क इज एनहांस्ड। हम इनिशियल फेज में ही प्रोजेक्ट के फेलियर होने के रिस्क एनालिसिस करते हैं। इससे क्या होता है, फ्यूचर में उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट। मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट मीन्स जहाँ पर आपको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट हम इनिशियल फेज में नहीं ले सकते और इसके फेलियर होने के चांस ज़्यादा हैं, इन दैट केस हम वी आर यूज स्पाइरल। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। बिकॉज ऑफ हम हर फेज में उसको रिस्क एनालिसिस करते हैं, तो क्या होता है, जो भी हमने काम किया वो वेरीफाई हो जाता है और प्रॉपर कंट्रोल रहता है। एडिशनल फंक्शनलिटी कैन बी एडिट एट ए लेटर स्टेज पे। हम बाद में, जैसे फर्स्ट फेज में हमसे कुछ रिक्वायरमेंट छूट गई है, तो हम सेकंड फेज में उसको ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड एर्लियर इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। इस कंसेप्ट के द्वारा हम स्टार्टिंग में ही सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। बट इन अदर मॉडल लाइक अ वाटरफॉल, हमें सॉफ्टवेयर एट द एंड मिलता है। यदि फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ स्पाइरल हमें स्टार्टिंग में एक वर्किंग मॉडल मिलता है और उस वर्किंग मॉडल को यूज करके यदि कुछ हमारी रिक्वायरमेंट मिसिंग है तो हम उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंड यूजर गेट ए चांस टू सी द प्रोडक्ट ईयरली इन द लाइफ। जो एंड यूजर मीन्स कस्टमर, उसको स्टार्टिंग में यूज करने के लिए मिल जाता है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, द मॉडल मेक्स यूज ऑफ टेक्निक्स लाइक रीयूज, प्रोटोटाइप एंड कंपोनेंट बेस्ड। रीयूज मीन्स वी आर यूजिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। बहुत सारे कोड या टेस्टिंग टूल्स जो ऑलरेडी किसी ने यूज किए हैं उसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। प्रोटोटाइप मीन्स एक वर्किंग मॉडल देते हैं, एंड कंपोनेंट बेस्ड मीन्स जैसे कि किसी चीज़ को असेंबल करना है। फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ, फोर व्हीलर, एनी कार, no company
construct or develop all the parts. They have simply buy some parts from other company. That is called component. Like a tire है, steering है, gearbox है, clutch है. Some of the company buy from other company and they combine and they assemble these parts and make a project. Similar in spiral model कि हम रीयूज कंसेप्ट भी कर सकते हैं, प्रोटोटाइप को यूज करते हैं, कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन का यूज करते हैं. देन व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल? कैन बी ए कॉस्टली मॉडल टू यूज बिकॉज इसमें काम की डेडलाइन हमें मालूम नहीं होता. हो सकता है कि फर्स्ट फेज में ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए. इट मे बी पॉसिबल सेकेंड फेज में, इट मे बी पॉसिबल थर्ड फेज में. हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं रहती. जब प्रोजेक्ट की टाइमलाइन नहीं होती तो उसका क्या बजट हम डिसाइड नहीं कर पाते. इट्स में भी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, कितनी नंबर ऑफ पर्सन काम करेंगे, कितने दिन तक काम करेंगे, वो हम डिसाइड नहीं कर पाते. देन रिस्क एनालिसिस रिक्वायर हाईली स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज. यदि हमें किसी में चीज़ का रिस्क एक्सपोज करना है, मतलब क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है रिस्क की, तो उसके लिए हमें बहुत नॉलेज की ज़रूरत होगी, डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर फील्ड में. देन प्रोजेक्ट सक्सेस इज हाईली डिपेंड ऑन द रिस्क एनालिसिस फेज. यदि इस कंसेप्ट में प्रोजेक्ट की सक्सेस फुली डिपेंड करती है किस पे? रिस्क एनालिसिस. यदि आपने प्रॉपर रिस्क एनालिसिस किया है, कोई भी रिस्क को लेफ्ट नहीं किया, छोड़ा नहीं है, देन योर प्रोजेक्ट इज हाईली सक्सेसफुल. नेक्स्ट, डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट. छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं करता क्योंकि उनके बजट कम होते हैं, टाइम कम होता है, और उन प्रोजेक्ट में हम रिक्वायरमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हेन टू यूज? व्हेन कॉस्ट एंड रिस्क इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट. कब यूज करेंगे? जहाँ पर कॉस्ट और रिस्क इवैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. इन दैट केस वी आर यूजिंग स्पाइरल मॉडल. फॉर मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कमिटमेंट अनवाइज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल चेंज टू इकोनॉमिक प्रायोरिटीज. देन यूजर्स आर अनश्योर ऑफ देयर नीड्स. कस्टमर को ये पता ही नहीं हो कि मुझे इस प्रोजेक्ट से क्या क्या चाहिए, देन वो स्पाइरल मॉडल का यूज करेंगे, क्योंकि बाद में यदि कुछ रिक्वायरमेंट उसे ऐड करनी है तो इजीली ऐड हो सकती है. देन सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड. दैट मीन्स रिसर्च आपको बाद में पता चला कि हमें एक टेक्नोलॉजी अप्लाई की थी काम करने के लिए, 6 महीने बाद उस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा एडवांसमेंट आया है, रिसर्च हो गया, तो क्या हम उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं? यस, हम स्पाइरल मॉडल में उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाद में चेंज अलाउ होता है, जबकि वाटरफॉल मॉडल में लेटर चेंज नॉट अलाउ, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट गोज टू द कंपैरिजन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल. इन केस ऑफ वाटरफॉल मॉडल इट रिक्वायर वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट एंड फेमिलियर टेक्नोलॉजी. हमें इनिशियल फेज में ही समझ में आना चाहिए. इन स्पाइरल इट इज डेवलप्ड इन इटरेशन, हेंस द रिक्वायरमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एट न्यू इटरेशन. दिस मॉडल वर्क इन इटरेशन. तो आपको यदि कोई रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में छूट गई तो हम अगले इटरेशन में उसको ऐड कर सकते हैं. सेकेंड, डिफिकल्टी टू अकोमोडेट चेंज आफ्टर द प्रोसेस एज स्टार्टेड. वाटरफॉल मोड में आप बाद में चेंज नहीं कर सकते बिकॉज waterfall cannot be follow back tracking. In case of spiral, the required changes can be added at every stage of new version. हर फेज के साथ आप नई रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हो. Can accommodate iteration but indirectly. But spiral it is iterative nature. Fourth point, risk can be identified at the end, which may cause failure to the product. वाटरफॉल मॉडल में रिस्क एनालिसिस का कोई कंसेप्ट नहीं है. हम लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है हमें कस्टमर को यूज़ करने के लिए थी, यदि वहाँ पर उसे कुछ प्रॉब्लम पेश हो रही है तो वी आर नॉट एबल टू चेंज. बट इन केस ऑफ स्पाइरल रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिड्यूस बिफोर दे गेट प्रॉब्लमेटिक. जब तक प्रॉब्लम क्रिएट हो उससे पहले ही हम थर्ड फेज में उसको एनालिसिस कर सकते हैं. Then fifth point, the customer can see the working model of the project only at the end. The customer can see the working product at certain stage of iteration. Sixth point, in waterfall,
कस्टमर प्रेफर दिस मॉडल। क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि इस मॉडल में कस्टमर को बार बार डेवलपर के पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको इनिशियल रिक्वायरमेंट देना है, एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। बट इन स्पाइरल डेवलपर प्रेफर दिस मॉडल बिकॉज यदि कोई भी मिस्टेक होती है, जैसे मैं आपको रिक्वायरमेंट दे के चला गया और मैं आखिरी में आके बोलता हूँ कि क्या उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट बना, और दैट केस नहीं बनता तो कंपनी को प्रॉब्लम आएगी। तो क्या होगा कि यदि मैं यूज़र को पर डे बताऊं कि मैंने इतना काम किया है, आप चेक कर लीजिए, और यूज़र डेली उसको वेरीफाई करता है कि आपने जो काम किया वो सही है, तो क्या होगा कि मेरे प्रोजेक्ट के फेलियर होने के चांसेस कम होंगे। और यूज़र डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे पता ही नहीं आपने क्या डेवलप किया, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। 7th point, in waterfall this model is good for a small project, this model is good for large system or medium systems. 8 point, it has sequential nature, it has evolutionary nature, that is called iterative nature. Then we have performed the sum comparison of software process model. Then based on parameter we compare the waterfall model, V model, increment model, spiral model, prototype model and RAD model. First parameter is well defined requirement. वाटरफॉल मॉडल में आपको इनिशियल फेज में ही रिक्वायरमेंट चाहिए, दैट्स वाई वी कैन से yes. In case of B model it is also yes, but in incremental model we can edit requirement in next phase. Similar in spiral model we can edit requirement in next phase. Similar in prototype models, but RAD models, in that model requirement is freezed and next phase is iteratives. Then domain knowledge of the team members. Waterfall adequate, average knowledge की requirement होती है. In P model is also adequate. Incremental is also adequate because we identify requirement or edit requirement at the beginning phases. Then spiral model, there is no need to vary, ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बाद में भी कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं. सिमिलर इन प्रोटोटाइप वेरी लेस, बट RAD इज एडिक्वेट. एक्सपर्टाइज ऑफ यूजर्स इन प्रॉब्लम डोमेन. क्या हमें उस प्रॉब्लम डोमेन में एक्सपर्टाइज होना चाहिए? तो वाटरफॉल में देयर इज नो नीड यूजर को, एंड वी मॉडल में भी यूजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, दैट इज नो नीड. इंक्रीमेंटल में बहुत कम यूज होता है. स्पाइरल वेरी लेस एंड प्रोटोटाइप एडिक्यूट एंड RAD is also adequate. Another point, availability of reuse component. Waterfall reusable component नहीं यूज करता. V model is also not used. Incremental is also not used. But spiral model use reusable component. Prototype is also use reusable component. RAD is also use reusable component. So next point, user involvement in all phase of HDLC. यूज़र का कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट रहता है? तो वाटरफॉल में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता. यूज़र का ऑल फेस, नॉट स्टार्टिंग, ऑल फेस. एंड V मॉडल इज ऑल्सो नॉट. इंक्रीमेंटल इज ऑल्सो नॉट. स्पायरल इज ऑल्सो नॉट. इन स्पायरल नॉट इन्वॉल्व इन ऑल फेस बट इन्वॉल्व एट द एंड ऑफ फेस. प्रोटोटाइप इन्वॉल्व ऑल फेस एंड RAD इज ऑल्सो इन्वॉल्व ऑल फेस. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, वाटरफॉल सिंपल होता है, V मॉडल भी सिंपल होता है, बट इंक्रीमेंटल कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बार बार आपको चेंजेस करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट बदलेंगे, प्रोटोटाइप बदलेंगे, मेथड बदलेंगे. स्पायरल इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, प्रोटोटाइप इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एंड RAD मॉडल इज मीडियम. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक,